Okay, guys, welcome to the seventh day of our automation training session. Today, we'll learn how to do a Maven project. It might take some time, but have certain patience. Um, I might not encounter these errors while we execute whatever we will do, but आप लोगों को problems आ सकती हैं. तो somebody who is encountering a problem, please let me know. You can stop me anytime you want. Sometimes it might become even little bit difficult for you to understand कि ये हम क्यों कर रहे हैं. तो पहले मैं बताऊंगा हम क्यों कर रहे हैं, फिर बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली इसको करना क्यों कर रहे हैं. फिर बाद में अगर आपको कहाँ पर भी एरर आता है, आई नो कहाँ पर एरर आएगा, क्या एरर आएगा, उसका रिजोल्यूशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आप सब लोग मुझे कंफर्म करोगे कि हाँ वी आर एबल टू वर्क विद इट. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज, अभी हम इंडिविजुअली लर्निंग कर रहे हैं. ठीक है. लर्निंग स्टेज में लर्निंग स्टेज में एवरीथिंग इज फाइन. वी कैन वर्क इंडिविजुअली, बट इन रियल टाइम सिनारियो, क्या हुआ भाई? ओके. बट सी, इन रियल टाइम सिनारियो देर आर चांसेस कि आप इंडिविजुअली काम करो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी वर्किंग इन ए ग्रुप. ठीक है. So now, let's say for example, there is Vivek, okay, and there is Nikita, and there is Akash in one team. Okay, this is team one. Okay, so let's say for example, this is team one. Okay, now there is another team which has Poonam, Ramu, and Rinalini. Okay, this is team two. This team one, Vivek, Nikita, and Akash, they are responsible for, let's say, smoke and sanity. Okay, they are all responsible for this smoke and sanity in different fields. Maybe Vivek is responsible for the initial part of it. Nikita is responsible for the home page part. Akash is responsible for some other domain of that particular application. But Poonam and Ramu and Minalini are responsible for the regression suite. Okay, where automation is extremely important. Okay. So let's say these people are a regression suite team and the other ones are a smoke and sanity team. So what happens is, when you people work together, obviously, let's say for example, I create a simple Java project. Okay. Let's say I have created this simple Java project. Okay. And I have only a JRE system library, and for some reason I go to my Java build path, you know, add my external jars. I have a lot of external jars, so I'll go and add. But the question is, whatever external jars I'm adding, let's say for example, Selenium. Okay, let's say for example, I'm adding my jar files. I have a lot of jar files. Okay, I have a lot of jar files. मैंने सारे add कर दिए. Okay, and I'm applying and closing everything. So here what happens is, I have another library which is an external library which has a lot of jar files. So now the thing is, these reference libraries which I have right now, they might be enough, they might not be enough. I'm not sure whether whatever I have added is actually making sense. Maybe all these reference libraries which are external jar files might not be with what happened to the screen. Okay, maybe I'm Vivek and I'm adding all the jar files. I'm not sure whether Nikita has all those jar files with the latest version. What do you mean by latest version? मान लीजिए यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी मेरा एंड का 1.10.5 है और निकिता यूज कर रही है 1.8.4, और 1.9 ऑनवर्ड्स, 1.8.4 तक ठीक है, लेकिन 1.9 ऑनवर्ड्स इसका
बहुत सारे अपडेट्स आ चुके हैं, लेकिन निकिता अभी भी ओल्ड पे काम कर रही है, विवेक नए पे काम कर रहा है। तो विवेक का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, निकिता का कोड में एक छोटी बहुत एरर्स आएंगे या फिर वार्निंग्स आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि निकिता के पास जो लेटेस्ट जार फाइल है वो एक्चुअली लेटेस्ट है नहीं। सो इस चीज को, ये सारी कंफ्यूजन को, ये सारे स्यापे को हटाने के लिए वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ, वी यूज मेवन, एज सिंपल एज दैट। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, मैं अगर नहीं समझाया तो बता देता हूँ। मेवन इज ए बिल्ड एंड कंपाइल टूल। सो हाउ डज मेवन build and compile anything? It builds and compiles because it is a storehouse. It is nothing but a toolkit which has a lot of inbuilt coding mechanisms to execute the code. Execute in the sense compile. So what it basically does is it aggregates all the toolkit in a common platform. मतलब विवेक के पास जो मेवन के फाइल्स होंगे, मैं फाइल्स बोल रहा हूँ, फाइल्स नहीं बोलना चाहिए, वही चीज निकिता निकिता के पास भी होंगे, सेम मेवन फाइल्स। ठीक है? और वही चीज आकाश के पास भी होंगे। तो क्या होगा ना कि ऐसा नहीं है कि विवेक बोलेगा मेरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, निकिता बोलेगी मेरा नहीं हो रहा है, फिर आकाश बोलेगा मेरा कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग सब सेम पेज पे होंगे, सारे लोग एक पेज पे होंगे, इसीलिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है? और एक चीज, मैं जो शुरुआती दौर पे आपको बोला था कि मैं आपको क्या क्या चीज़ें सिखाऊंगा, क्या क्या चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको फ्रेमवर्क पे, मैं आपको डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क भी सिखाऊंगा, मैं आपको कीवर्ड ड्रिवन भी बताऊंगा, और हाइब्रिड भी थोड़ा मिक्स करेंगे, और साथ में हम लोग बीडीडी कुकुम्बर भी फॉलो करेंगे। एंड ये सब करेंगे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच के तहत। मैंने सब बोला था, ये इतने सारे अलग अलग टाइप के फ्रेमवर्क हम यूज करेंगे, और इन सब का एग्जीक्यूशन इंजन और फ्रेमवर्क रहेगा टेस्ट एन जी, और थोड़ा बहुत जे यूनिट एंड लिटिल बिट ऑफ जे यूनिट। जे यूनिट का भी यूज करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो मैंने सब आपको बताया था कि ये सारे फ्रेमवर्क रहेंगे। टेस्ट एन जी भी एक तरीके, हेलो हेलो, व्हाट हैपेंड? या पूनम, व्हाट हैपेंड? अच्छा, तो अचानक यू अनम्यूटेड, सो okay, fine. So see, we will be doing each and everything in detail at a very professional level. So now the thing is, today I'll let you know how to do a very simple Maven project. ठीक है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप फाइल में जाओगे एंड यू डू न्यू, ओके, हो सकता है यहाँ पर आपको मेवन दिखे, हो सकता है ना दिखे, डोंट वरी, कम टू अदर, अदर पे क्लिक करो, और यहाँ पे ऊपर MAVEN टाइप करो, और यहाँ पर आपको मेवन प्रोजेक्ट दिख जाएगा। ठीक है? सो आप क्या करेंगे, मेवन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, आपका मेवन प्रोजेक्ट न्यू मेवन प्रोजेक्ट बोल के आएगा। शुरुआती दौर पे हम लोग क्या करते थे, ये आर्च टाइप सिलेक्शन को, चेकबॉक्स को चेक कर देते, मतलब मुझे आर्च टाइप सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। आर्काइव्स, आर्च टाइप मतलब नथिंग बट आर्काइव्स होता है वो, बहुत सारा टूल किट होता है। हम लोग इस बोलते थे अपन को इतना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल चीज़ चाहिए, तो जो भी बेसिक चीज़ चाहिए मैं उतना ही उठाऊंगा, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर देते थे, नेक्स्ट करते थे। ग्रुप आईडी जो हमारा टिपिकल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, उसको ऐसे लिखते हैं, कॉम डॉट कंपनी नेम, मतलब जिस कंपनी में मान लो कोई सिस्को के लिए काम कर रहा है, कोई फिलिप्स के लिए काम कर रहा है, कोई उसको लिए काम कर रहा है, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा है। जैसे हम लोग ऑटोमेशन हब के लिए ये चल रहा है। ठीक है? तो हम यहाँ पे
एक सिंपल सा कुछ नाम दे देंगे, ये आपका ग्रुप आईडी हो जाएगा। आर्टिफैक्ट आईडी होगा वो जो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट नेम है ना वो आर्टिफैक्ट आईडी है। आप चाहे तो इसे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं बोलूँगा ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग बैच 1 2021, फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना बड़ा एक नाम दे दिया। ठीक है, मैं इसको फिनिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग बैच 1 2021 बोल के एक मेवन प्रोजेक्ट बन गया। देखिए ये मेवन प्रोजेक्ट नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट से डिफरेंट है। लर्निंग जावा का ये जो प्रोजेक्ट है ये जावा प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जे लिखा है। ये जो ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग बैच 1 2020 ये मेवन प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एम और जे दोनों हैं। तो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखोगे, अगर आप सिंपल एक मेवन प्रोजेक्ट बनाते हो जिसमें आप आर्च टाइप सिलेक्शन को स्किप करते हो, वो चेकबॉक्स चेक करके आर्टिफैक्ट आईडी और ग्रुप आईडी और आर्टिफैक्ट आईडी देते हो, तो आपको ऐसा एक मेवन मिलेगा। ठीक है, सिंपल इसमें एक एस आर सी मेन जावा एक फोल्डर है, एस आर सी मेन रिसोर्सेज एक फोल्डर है, टेस्ट जावा टेस्ट रिसोर्स फोल्डर है, जे आर ई सिस्टम लाइब्रेरी जो बाई डिफॉल्ट जावा का वो होता है। देखिए अगर आप मेवन प्रोजेक्ट भी बनाएंगे ना, तब भी उसमें बेसिक जो जावा का लाइब्रेरी है, जे आर ई सिस्टम लाइब्रेरी, वो भी आएगा। ठीक है, और फिर ये एक सोर्स फोल्डर है जहाँ पर आप कुछ लिखते हैं, टारगेट में आपका आउटपुट वगैरह आता है। अब मेन मुद्दा ये है पॉम डॉट एक्स एम एल। पॉम डॉट एक्स एम एल इज द हार्ट ऑफ द मेवन प्रोजेक्ट। यहाँ पर इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे आएंगे, आपके जो भी डिपेंडेंसीज डालने पड़ेंगे। पहले हम क्या करते थे, गूगल में जाके, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं सेलेनियम डॉट डेव पे गया। ठीक है, सेलेनियम डॉट डेव पे गया, फिर वेब ड्राइवर मैनेजर के लिए गूगल से वेब ड्राइवर मैनेजर डाउनलोड किया। अपाची पीओ फाइल्स के लिए डाउनलोड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे जाते थे सेलेनियम डॉट डेव में। मेरा नेट बहुत स्लो है शायद। मैं यहाँ पे जाते थे, फिर हम लोग यहाँ से डाउनलोड करता था, वो इधर आता था, फिर उसको एक्सपैंड करते थे। फिर उसको मैं बोलता था इसको हटाओ उसको हटाओ, एक जगह सेलेनियम जार फाइल्स बनाओ। वो सारा तामझाम अभी ख़त्म हो जाएगा। अभी ये सब हमें कुछ नहीं करना, करना है लेकिन एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना, इसमें थोड़े चेंजेस आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, गूगल में जाके मान लो पहले आप टाइप करोगे सीधा सेलेनियम वेब ड्राइवर मेवन डिपेंडेंसी, आप ऐसे टाइप करोगे। ठीक है, तो ये आपको https मेवन रिपोजिटरी डॉट कॉम, जो मेवन रिपोजिटरी का मेन उनका जो मेन हब है, जो मेन उनका नेटवर्क वो प्रोफाइल है जहाँ पर आप सारे के सारे कोड रखते हो। एक सेकंड, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, मैं ज़रा वो चेंज कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, मैं अभी इस सेशन को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। मैं लॉग इन करता हूँ जूम सेकंड सेशन पे, आप लोग तुरंत आ जाओ। ठीक है, ओके, विल कंटिन्यू। सो आपको अगर कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंसीज वगैरह डालना है, मैं क्या डिपेंडेंसीज क्या बताऊंगा आपको, गूगल में जाके सिर्फ आपको टाइप करना है उस पर्टिकुलर, नहीं तो आप एक काम करो सीधा मेवन रिपोजिटरी डॉट कॉम ये वेबसाइट पे आ जाओ आप। मैंने चैट में सबको दे रहा हूँ ये वेबसाइट का नाम, आपको ये वेबसाइट पे आना है। और ये वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करो, जैसे कि सेलेनियम वेब ड्राइवर, या फिर सेलेनियम, कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करो, सेलेनियम जावा, आपको वो डिपेंडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए सेलेनियम जावा, सेलेनियम वेब ड्राइवर, यहाँ पे सेलेनियम जावा पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हमारा सबसे जो स्टेबल है वो 3.141.59 है। ये सब अल्फ़ा बीटा कभी मत उठाना, ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, 3.14.51 पे क्लिक कीजिए, 59 पे क्लिक कीजिए, इसको उठाइए, कॉपी कीजिए। कॉपी करने से पहले यहाँ पर आपको एक टैग बनाना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज। ठीक है, इसके अंदर हम सारे डिपेंडेंसी टैग डालते जाएंगे। तो इसको सेव कर दीजिए, जैसे ही आप सेव करेंगे यहाँ पर वो बिल्डिंग वर्क्स पे स्टार्ट हो जाएगा। अब एक एक करके आप इसमें एक एक करके डिपेंडेंसी डालते जाओगे।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिस प्रोजेक्ट में आपको समझाता हूँ कोड, सेलेनियम वेब ड्राइवर कोड, मेरा ये वाला pom.xml देखिए आप, देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसीज का टैग डाला, फिर एक एक करके डिपेंडेंसी डाला। देखिए मेरे कितने डिपेंडेंसी मैंने डाल रखे हैं, कितने डिपेंडेंसी मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी डिपेंडेंसी विवेक भी डालेंगे, ये सारे आकाश भी डालेगा, और ये सारे निकिता भी डालेगी। तो अगर कुछ चेंजेस आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल आप 7.1.0 में नहीं काम करना चाहते, आप 6.9 पे काम करना चाहते हो, तो बस यहाँ पे जाके इस नंबर को चेंज कर देना है और सेव कर देना है, ऑटोमेटिकली वो लेटेस्ट आ जाएगा। तो तीनों के पास सेम आ जाएगा, बोल देना भाई तू कौन सा यूज़ कर रहा है मेवन डिपेंडेंसी, और टेस्ट एनजी का मेवन डिपेंडेंसी बोल, वो बता देगा या बता देगी कि भाई इसमें हो, तो वो दोनों अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेंगे जाके, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी हो जाता है। somebody has any doubts? Please, if you're muting or unmuting yourself, please let me know first. Okay, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंसीज आपको एक एक करके डालने पड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ये पुराना मेथड फॉलो करो। आज की डेट में हम कोई भी स्किप आर्च टाइप नहीं करते, तो अभी आप इसको भूल जाओ। ठीक है, तो मैंने अभी जो प्रोजेक्ट बनाया था ऑटोमेशन हब ट्रेनिंग बैच 1, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उससे पहले मैं ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ जो सिंपल जावा प्रोजेक्ट है, मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया। अभी आप एक चीज़ पे ध्यान रखिए, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी मुझे। पहले मैं आपको ये वाला एक लिंक देना चाहता हूँ, इस लिंक को आप चैट पे मैं सबको दे रहा हूँ। इस लिंक को आप कहीं एक जगह लिख लीजिए, जैसे मैंने नोटपैड पे लिखा है, इस लिंक को आप लिख लीजिए। इस लिंक में मेवन के लगभग जितने भी आर्च टाइप्स हैं लेटेस्ट मेवन के सारे मौजूद हैं। आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी करना है। कॉपी किया, एक्लिप्स पे गए, विंडो पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस पे आएंगे, यहाँ पर आप टाइप करेंगे मेवन। जैसे आप मेवन टाइप करेंगे, आर्च टाइप्स बोल के आ जाएगा, आर्च टाइप्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा, ऐड रिमोट कैटलॉग बटन। बस इस रिमोट कैटलॉग बटन को क्लिक कीजिए और कैटलॉग फाइल की जगह वो लिंक कॉपी पेस्ट कर दीजिए। इतना करना है, और यहाँ पे लिख लीजिए रिमोट कैटलॉग। इतना करके ओके कर दीजिए, आपका काम खत्म। ये पहला स्टेप है, इतना आपको करना पड़ेगा। मैं दोबारा दिखा देता हूँ शुरू से। वो लिंक आप कॉपी कीजिए, जो यहाँ से आपने कॉपी किया था, मैंने जो दिया था, कॉपी कीजिए, विंडो पे आइए, कम टू प्रेफरेंसेस, यहाँ पर टाइप कीजिए मेवन, एंटर मारिए, आर्च टाइप्स आएगा, आर्च टाइप्स पे क्लिक कीजिए, ये वाला आर्च टाइप्स का विंडो आएगा, यहाँ पे ऐड रिमोट कैटलॉग बटन है, इसको क्लिक कीजिए, फाइल की जगह वो लिंक कॉपी कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए रिमोट कैटलॉग। इसको करने के बाद ओके कर दीजिए। बस इतना ही करना था, मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये वाला मैं कर चुका हूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये आ चुका है, इतना आप कर दीजिए, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज, आपका काम हो गया। तो अब क्या हुआ, आपके एक्लिप्स में आपने मेवन के जितने भी आर्च टाइप्स हैं सारे आपने इंपोर्ट कर लिए हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, आप अभी एक मेवन प्रोजेक्ट फिर से बनाएंगे, तो आप फाइल पे जाएंगे, न्यू, सॉरी, अदर, और यहाँ पे टाइप करेंगे मेवन, मेवन प्रोजेक्ट आ जाएगा, डबल क्लिक कीजिए। बट यहाँ पर हमने पिछली बार क्या किया था, हमने यहाँ पर इस भाई साहब को चेक बॉक्स को चेक किया था, हम अब की बार इसको नहीं चेक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पर कैटलॉग में हमने क्या दिया था, कैटलॉग, रिमोट कैटलॉग दिया था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट लोकल आएगा, लेकिन हमें, या फिर ऑल कैटलॉग्स आएगा, नहीं, हमें रिमोट कैटलॉग स्पेसिफिकली यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप रिमोट कैटलॉग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप, मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ से रिमोट कैटलॉग। अब यहाँ पर फिल्टर में मैं टाइप करूंगा मेवन माइनस आर्च टाइप माइनस क्विक स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन आएंगे, 1.1, 1.01, 1.4। आपको क्या करना है, मेवन माइनस आर्च टाइप माइनस क्यू यू आई करेंगे तो क्विक स्टार्ट ही है, 1.4 को सिलेक्ट कर देना है, डबल क्लिक कर दीजिए, फिर ये ग्रुप आईडी मांगेगा, com डॉट
ऑटोमेशन डॉट लर्निंग, मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ और यहाँ पे लिख दूंगा ट्रेनिंग अंडरस्कोर मेवन अंडरस्कोर आर्च टाइप 1.4। ये एरर दे रहा है, इनवैलिड आर्च टाइप ही लिख दो, नहीं तो यहाँ लिख दो 1.4 आर्च टाइप, लास्ट में वो डिजिट्स नहीं लेता, 1.4 आर्च टाइप। ठीक है, आप कर दो फिनिश। आप देखोगे जब ये फिनिश होगा, जब ये मेवन प्रोजेक्ट बनेगा, देखो कहाँ बना मेरा मेवन प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग अंडरस्कोर मेवन 1.4 आर्च टाइप, ये मेरा मेवन प्रोजेक्ट लेटेस्ट बना। मैं इसको अगर एक्सपांड करूंगा, थोड़े आपको चेंजेस नजर आएंगे। आपको देखने को मिलेगा इस SRC मेन जावा के अंदर एक पैकेज है, ठीक है, और इस SRC टेस्ट जावा के अंदर और एक पैकेज है। हमको इस पैकेजेस की ज़रूरत नहीं, चुपचाप जाओ इसको डिलीट मार दो, कोई ज़रूरत नहीं इसको, यहाँ से भी डिलीट मार दो, कोई नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बाकी आपके JRE सिस्टम लाइब्रेरी जो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है, मेवन डिपेंडेंसीज अभी कुछ ही चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, ऑलरेडी कुछ मेवन डिपेंडेंसीज मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे, pom.xml को एक्सपैंड करेंगे। तो आप चेक करेंगे यहाँ का pom.xml नॉर्मल जो स्किप आर्च टाइप हम लोग करते थे उसके pom.xml से थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ही डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आएंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है। अब आप बोलोगे कि कौन सा हमें डालना पड़ेगा मेवन डिपेंडेंसीज। जो भी मेवन डिपेंडेंसीज डालनी है मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, आपको ये सारा मेवन डिपेंडेंसीज डालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे इस पर्टिकुलर URL पे, ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे है। ठीक है, मैं दोबारा इसको बता देता हूँ, इस पर्टिकुलर URL पे जाएंगे और मैंने यहाँ पे जो जो दे रखा है वेब ड्राइवर मैनेजर एक एक करके कॉपी करो और यहाँ पे टाइप करो। तो देखो वेब ड्राइवर मैनेजर ये उठाने का, ये नहीं उठाने का, io.github.boni गार्सिया से उठाने का, इसको क्लिक करो। ठीक है, लेटेस्ट मई 2021 का, यहाँ से क्लिक करो और इसको कॉपी करो और यहाँ पे आओ डिपेंडेंसीज के अंदर। देखिए डिपेंडेंसीज के अंदर ये डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, डाल दिया आपने, सेव कर दो। तो जैसे ही सेव करोगे ये काम करने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके एक एक आपको डिपेंडेंसी जो मैंने दे रखी है ना, यहाँ पे मैंने आपको चैट में भी दिया है, एक एक मैंने चैट में शायद दिया होगा, you have to go to this particular URL and all these dependencies आपको ऐड करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे उसको यहाँ पर एक एक करके डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक एक करके डालनी पड़ेगी, उसके बाद भी आप लोगों को एरर आएगा ही आएगा। ठीक है, एरर ऐसे कॉपी पेस्ट करने पे नहीं आएगा, जब सेव करोगे कंट्रोल S करोगे डालने के बाद तो एरर आएगा। निकिता को मैंने बताया था, आकाश को मैंने बताया था, तो उन लोगों को क्या एरर है वो पता है। आप लोगों को जिन्होंने ये एक्सरसाइज पहली बार कर रहे हैं उनको ये एरर आएगा ही आएगा। तो आप लोगों का थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेवन डिपेंडेंसीज आपको एक एक करके कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने वो मेवन डिपेंडेंसी बना के रखी है। मैंने निकिता और आकाश को सेपरेटली उसको कॉपी पेस्ट करके दिया था। ठीक है, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं वही चीज़ आपको ग्रुप में पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक सेकंड, web.whatsapp ओपन करता हूँ, एक सेकंड। तो आप लोग अभी अपना web.whatsapp ओपन करेंगे, एक सेकंड, पहले मैंने निकिता को दिया था शायद। हाँ निकिता, आपका तो ऑलरेडी सेटअप है ना, आपको टेंशन नहीं है, बराबर। मैंने ग्रुप पे भी दिया था क्या, नहीं तो मैंने ग्रुप पे नहीं दिया था, मैं आपको इंडिविजुअली भेजा था। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मेवन डिपेंडेंसीज जो मैं ग्रुप पे दे दिया, आप लोग ग्रुप चेक करेंगे तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो आप ध्यानपूर्वक web.whatsapp.com से जाके
ये मेवन डिपेंडेंसीज वहाँ से उठा लीजिए, जितने भी डिपेंडेंसी है वहाँ से उठाइए और चुपचाप इधर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ वाले पे इस डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर पेस्ट कर दीजिए। इतने में सारा काम आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपना पेस्ट कर रखा है। देखिए मैंने अपना पहले से बना के रखा है, तो जितना भी मैंने बना रखा है मैं दोबारा वहाँ से उठा के यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूँगा। उसको करने के बावजूद भी आप लोगों को जब कंट्रोल एस करेंगे तो आपको एरर आएगा ही, भी आएगा ही आएगा। देखिए जैसे अभी मैं अपने पुराने से कॉपी करके इधर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मुझे एरर ना आए, क्योंकि जो वर्क अराउंड करना था मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। हो सकता है आपको डेफिनेटली एरर आएगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको एरर आ रहा है, क्योंकि कंट्रोल एस कॉपी पेस्ट करने में कुछ एरर नहीं है। जैसे ही आप कंट्रोल एस करने जाएंगे, इसको सेव करने जाएंगे, तो एरर आएगा। एरर यहाँ पर आएगा, एक्सएसआई स्कीमा लोकेशन पे एरर आएगा, एक एरर आएगा। दूसरा एरर आपको यहाँ पर आएगा, एक ग्रुप आईडी com.sun है, यहाँ पर आएगा सिस्टम पाथ के पास एक एरर आएगा। दो एरर आपको एनकाउंटर होंगे। मुझे, निकी और आकाश को ये एरर एनकाउंटर नहीं होगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी ठीक कर दिया है। तो मैं अभी वीडियो थोड़ा पॉज कर रहा हूँ, दिखेगा तो अगर बाद में एरर दिखेगा तो मुझे बता देना, मैं उसको इंडिविजुअली फिक्स कर दूंगा। निकिता का और आकाश का, निकिता और आकाश को भी आप कंसल्ट कर सकते हो, उन दोनों को भी पता है ये एरर कैसे फिक्स किया जाता है। ठीक है, सो ये एरर आपका हो जाएगा ठीक। उसके बाद एक बार आपका एरर ठीक हो जाए तो आपको आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी मेवन प्रोजेक्ट के अंदर आप अपना सारा काम कर सकते हो। जैसे मैंने ये मेवन 1.480 में मैं अपना सारा काम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं कोई भी सेलेनियम का करूँगा, मैं एसआरसी टेस्ट जावा में सेलेनियम का करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू एक पैकेज बना सकता हूँ और यहाँ पे मैं अपना सेलेनियम का कोड लिख सकता हूँ, सेलेनियम कोड। तो मैं अभी सारा, मैं एसआरसी मेन जावा में एक पैकेज बनाऊंगा और जावा कोड अपना लिखूंगा। ठीक है, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसी में हो जाएगा। मुझे बार 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 जार फाइल गूगल से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारे के सारे जितने चाहिए सब मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब हम ग्रुप में काम करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग डिपेंडेंसीज पे नहीं, सेम डिपेंडेंसी पे काम करते हैं। मान लो किसी का डिपेंडेंसी चेंज करने का टाइम आ गया, तो form.xml में जाके वो अपना वर्जन ही और शी विल चेंज एंड दैट विल वर्क। दैट इज हाउ इट इज। So I think this one is really important for you to begin, because from now onwards no one will work on a simple Java project. Everyone will create a Maven project 1.4 arch type, okay, and accordingly you will work. अगर आप लोगों को डाउट है तो ये वीडियो घर जाके बाद में दोबारा आराम से देख लेना। अभी हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल सेलेनियम कोड का लेट्स से मैं क्लास बनाता हूँ, और मैं कल आपको मल्टीपल ब्राउज़र्स के बारे में बताया था। ठीक है, ओके, मैं मल्टीपल ब्राउज़र्स के बारे में कल आपको बताया था। मैंने क्या बोला था कि आई विल जस्ट क्रिएट ए ब्राउज़र। मान लो मैंने ब्राउज़र का नाम लिख दिया क्रोम या फिर कुछ भी, एंड देन मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट में अगर इसको यूज़ करना चाहूँ, इफ़ ब्राउज़र नेम डॉट इक्वल्स क्रोम, इफ़ की बॉडी स्टार्ट होगी, इफ़ की बॉडी में हम यहाँ पे लिखेंगे वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर ड्राइवर डॉट गेट।
ठीक है। एल्स अगर ये नहीं है तो एल्स की बॉडी बनाओ एंड यहाँ पे कुछ मैं टाइप कर दूंगा, द ब्राउजर इज नॉट ओपनिंग समथिंग, कुछ भी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारा पॉम डॉट एक्स हमने ये कल जो किया था, ये हमने सिंपल एक जावा प्रोजेक्ट में जार फाइल ऐड करके आप लोगों ने सब किया था। आज हम ये एक पॉम पेज ऑफ सॉरी एक पॉम डॉट एक्सएमएल जो मेवन डिपेंडेंसी का 1.4 जिसमें हमने आर्च टाइप को स्किप नहीं किया उस पे बना रहे हैं। तो हम ये यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि क्या ये एक्चुअली काम कर रहा है। सो लेट्स वेट। आप लोगों में जल्दी हो जाएगा, मेरा सिस्टम बहुत स्लो है, सो मेरे सिस्टम में अननेसेसरी टाइम लगता है, ठीक है। बट आपके सिस्टम में ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सिस्टम में भी धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बराबर काम कर रहा है। तो मैंने जो भी कमांड दिए थे मैक्सिमाइज करने का, मैक्सिमाइज भी हो गया, google.co.in भी ओपन हो गया, ठीक है। तो मेरे काम कर रहे हैं। तो हमारा ये जो मेवन प्रोजेक्ट हमने बनाया ये सक्सेसफुल है। तो आप एक काम करो, आज आपका ये असाइनमेंट है, घर जाके यहाँ पर जो मैंने ट्रेनिंग मेवन 1.4 आर्च टाइप जो भी स्टेप्स मैंने बताया सेम एग्जैक्टली वही चीज़ें आप करो। मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल का पूरा डिपेंडेंसी फाइल आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के चैट में दे दिया है, वहाँ से उठाओ और पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में पेस्ट करो। एरर्स आएंगे, सेव करने पे एरर्स आएंगे, अगर एरर्स आते हैं तो मुझे, निकी या फिर आकाश, आप तीनों को कांटेक्ट कर सकते हो, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। हम तीनों आपकी हेल्प कर देंगे। तो बस इसमें इतना ही, आज मैं ऑटोमेशन में और कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। मैं आज जावा का थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जावा थोड़ा पीछे रह गया हमारा, ठीक है। तो कल आप लोग क्लास अटेंड नहीं करे। कल मैंने थोड़ा बहुत जो 3-4 लोग थे उनको मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हल्का फुल्का बताया था। आज मैं उनको थोड़ा बहुत मैंने एक सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड इसको बंद कर देते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, वो लेटेस्ट वाला पुल करेगा, लेकिन दोनों जार फाइल रखेगा। वो जहां पर उसको काम करो वो दोनों पे काम करेगा। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पॉम डॉट एक्सएमएल। मैं आपका क्वेश्चन का डायरेक्ट एग्जाम्पल दे के बताऊं? एक सेकेंड, मैं जो आप पूछ रहे हो ना मैं वो डालता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, वो कहाँ गया? 3.14.59 कंट्रोल एफ, ये एक सेकेंड वो दिखेगा ना यहाँ पे। वेब ड्राइवर मैनेजर नहीं, कुकुम्बर वेब ड्राइवर, सेलेनियम कहाँ गया? हाँ, ये राइट। मैं काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया। अभी मैं इधर से जो वेब ड्राइवर मैनेजर बोल रहा हूँ, सेलेनियम जावा, इसको उठाते हैं, ठीक है। 3.14.59, अभी मैं बीटा 4 उठाता हूँ, ठीक है। इसको उठाया, इसको डाल दिया मैंने, बराबर। मैंने इसको डाल दिया। अभी मैं क्या करूँगा, अपने मल्टीपल ब्राउजर्स कोड को, अभी मेरे पास दोनों है, वर्कस्पेस भी बिल्ड कर दिया वो 86%, वर्कस्पेस भी बिल्ड कर दिया वो, ठीक है। अभी मैं दोबारा इस कोड को रन करता हूँ। हमारे पास तो दोनों है ना, 4 बीटा का भी है और वेब ड्राइवर 3.141.59 सेलेनियम का भी है, इसका भी है। तो मैंने सेम कोड को एग्जीक्यूट कर दिया है, देखते हैं क्या होता है। मैंने कोड एग्जीक्यूट किया कि नहीं?
अच्छा, वर्क स्पेस बिल्ड कर रहा है। ठीक है, सो ये अभी वर्क स्पेस बहुत देर से बिल्ड कर रहा है। मैं इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ। शायद जब तक वर्क स्पेस बिल्ड हो रहा है तब तक ये रन नहीं करने देगा, या फिर मेरे सिस्टम में स्लोनेस है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, सो टुडे वी विल सी द कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा, कल मैंने कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। सिर्फ एक कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, विच इज़ नथिंग बट मैंने बताया था इफ लैडर इफ जो होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? देखो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिलेक्शन, या फिर उनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका इफ आ गया, ठीक है, आपका इफ एल्स आ गया, आपका इफ एल्स इफ ये आ गया, और आपका नेस्टेड इफ आ गया। ये होता है आपका इसमें मतलब सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इतने आते हैं। दूसरा जो स्टेटमेंट है उसे कहते हैं आइटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा? फॉर आएगा, आपका वाइल आएगा, आपका डू वाइल आएगा। ठीक है, फॉर में भी नेस्टेड फॉर, एडवांस्ड फॉर लूप, वो सब उसमें आते हैं। ठीक है, तो मैं उसको वही कर देता हूँ, नेस्टेड फॉर और एडवांस्ड फॉर, ये सब उसी में आते हैं। ठीक है, ये सारी लूप्स उसी में आते हैं। ठीक है, लेकिन वाइल और डू वाइल थोड़े अलग हैं, उनके एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, थर्ड आपके हैं तीसरे कंट्रोल स्टेटमेंट, जिससे कहते हैं जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में क्या आता है? ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। देखो, गो टू जावा में नहीं यूज होता, इसको मत यूज करना। गो टू सी प्लस प्लस का है, जावा में नहीं है। हालांकि है जंप स्टेटमेंट, बट नहीं यूज करते। ठीक है, तो आप ये तीनों चीजें याद रखो। कंट्रोल स्टेटमेंट्स तीन तरह के होते हैं, सिलेक्शन और कंडीशनल, आइटरेशन और लूपिंग, जंप स्टेटमेंट्स। एक एक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब एक चीज ये समझो कि हम लोग ये यूज क्यों करते हैं। ये हम लोग यूज क्यों करते हैं? अच्छा, ये इसके अलावा स्विच भी आता है यार, मैं बताना ही भूल गया। सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट स्विच भी आता है। ठीक है, तो पहली चीज, हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि मान लो आपने एक कोड बनाया। ठीक है, आपने एक छोटा सा आपका ब्लॉक है, ये है ब्लॉक वन, और आपका इधर कुछ कोड है। ठीक है, ये है ब्लॉक 2, और आपका इधर कुछ कोड है, और ये है ब्लॉक 3, और आपका इसमें कुछ कोड है, और ये ब्लॉक 4, आपका इसमें कोड है। जावा कैसे काम करता है? जावा जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं ना, ऊपर से नीचे काम करता है। ऊपर से नीचे काम करेगा। पहले ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3, फिर ब्लॉक 4। मान लो आप चाहते हो कि मैं चारों को एक साथ एग्जीक्यूट करूं, या फिर ब्लॉक 2 और 3 को करने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 करे फिर 4 करे फिर बाहर आ जाए, ब्लॉक 2 और 3 अपने मन मुताबिक आप करो, या फिर इन दोनों को कंटिन्यू करो, इसको रोक दो, इसको आगे बढ़ो। मतलब ये क्या आप कंट्रोल कर रहे हो अपने प्रोग्रामिंग को? नॉर्मल फ्लो क्या है? ऊपर से नीचे। इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो आप कि मैं इसको यहाँ ब्रेक कर दूं, इसको यहाँ कंटिन्यू करूं, इसको यहाँ रोक दूं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, तो हम इतना ही यूज़ करेंगे, इतने में हमारा ऑटोमेशन लगभग पूरे से ज़्यादा ही हो जाएगा। तो हम इससे ज़्यादा कंट्रोल स्टेटमेंट्स नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ यहाँ तक कोई डाउट है? ओके, तो आज हम पहला हम जानेंगे ये इफ एल्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, कल आप वीडियो देख लेना। नेस्टेड इफ कुछ नहीं है। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर और एक इफ एल्स इफ भी नेस्टेड हो सकता है। वो आप अगर डाउट है तो मुझे, नेस्टेड इफ आपका होमवर्क है, अगर नहीं समझ आता तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बता दूंगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नेस्टेड इफ क्या होता है, और नेस्टेड इफ एल्स इफ क्या होता है, तो वो आप देख लो। स्विच स्टेटमेंट भी आप देख लो, नहीं आएगा समझ में तो मैं बता दूंगा। ठीक है,
आज हम पहला अभी वाइल लूप चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोड पे गया, यहाँ पे जावा कोड, मैं पहले न्यू क्लास, मैं बताऊंगा वाइल लूप, वाइल लूप। देखो वाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब when we do not have the constraint of finite execution। इसका क्या मतलब है, मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता कि भाई 4 बार ही एग्जीक्यूट करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता 10 बार भी हो जाए, तब हम लोग वाइल लूप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके स्टेप्स होते हैं, आप पहले इनिशियलाइज कर लो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर है कर लो। फिर वाइल लूप में कंडीशन डालो, कंडीशन डाला, फिर आप यहाँ पे जो भी अपना बॉडी बनाओ, बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ वाइल लूप बनाओ, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो, ये आप कर सकते हो। तो मैं एग्जैक्टली इनिशियलाइज पहला स्टेप है, इंट आई इक्वल टू 1 मैंने कर दिया, ठीक है। अभी मैं वाइल लूप, वाइल बुलाया, कंडीशन दूंगा, मैं मान लो देता हूँ आई इज लेस देन 10, ट्रू है, बॉडी ओपन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया भाई मेरे को आई प्रिंट करके दे दे, सॉरी, ठीक है। अभी मैं इंक्रीमेंट कर दिया, इंक्रीमेंट कैसे किया, आई प्लस प्लस, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या हुआ, इनिशियलाइज कर दिया मैंने, बराबर। यहाँ पे क्या किया मैंने, कंडीशन डाला, कंडीशन कैन बी ट्रू और फॉल्स, कुछ भी हो सकता है। मैं झूठा कंडीशन अगर दे दूं, वाइल आई इज ग्रेटर देन 10, आई को प्रिंट करो, वो क्या करेगा, ये कंडीशन ही झूठा है ना। पहली बार तो आई लेस देन 10 वाज कंडीशन वाज ट्रू, हियर कंडीशन इज फॉल्स। मैं अगर अभी इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा इसका आउटपुट, कुछ आउटपुट निकलेगा क्या, कुछ नहीं निकलेगा, कंडीशन ही फॉल्स है, ठीक है। तो जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये नहीं काम करेगा। वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने पे अंदर जाता ही नहीं है, वैसे कोई भी नहीं जाता, लेकिन इफ एल्स में क्या है ना, हमारे पास है कि एल्स करो, वाइल के साथ हम एल्स वगैरह नहीं देते, तो इसके पास और कोई स्कोप नहीं है, या तो कंडीशन सही है या तो गलत। अच्छा, वाइल लूप के डीमेरिट्स क्या हैं, एक डीमेरिट ये है, इनफाइनाइट लूप में जाने के चांसेस होते हैं, और ये चांसेस तभी होते हैं इफ़ वी एज जावा डेवलपर्स और कोडर्स या जो भी, आवर लॉजिक इज नॉट 100% करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बोला था इनिशियलाइज करो, ये स्टेप्स मैंडेटरी नहीं है इनिशियलाइज करना, जैसे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी होता है, वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। चलो मान लो मैं इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, ये कंडीशन को भी मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, मैंने एक ट्रू कंडीशन डाल दिया, इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पे है नहीं तो मैं लिखूंगा आई एम हैविंग फन। कोई बता सकता है इसका आउटपुट क्या आएगा, निकी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। yes, so why this will continue, exactly, so what will happen is this will continue in a loop, ये खत्म ही नहीं होगा, ओके। तो इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा हमें फोर्सफुली, नहीं तो आउटपुट ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। सो वाइल लूप, अगर लॉजिक इसका देखो, वाइल ट्रू, अच्छा मैं अगर इसको फॉल्स कर दूं, वाइल फॉल्स, तो ये बॉडी में घुसने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ का कंडीशन ट्रू है तो ये कुछ भी अलाउ कर देगा। अब मैं यहाँ, अच्छा मैं भी इनिशियलाइज करता हूँ, इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सिसो आई, ठीक है। अभी इसको रन करते हैं, देखिए क्या होगा, आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन और 1,
आई इक्वल टू 1 है ना, ये बार बार चले जा रहा है। देखिए आई का वैल्यू यहाँ पे 1 चेप रहा है और आई एम हैविंग फन, ये नॉन स्टॉप चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर अभी मैं इसको आई प्लस प्लस कर दूं तो अभी देखिए क्या होता है। ये अपने आप बढ़ाते जा रहा है आई की वैल्यू को। देखिए आई की वैल्यू नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, ये नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई बहुत ही परफेक्ट कंडीशन यहाँ पे है नहीं। ये ट्रू का क्या मतलब है? ट्रू इज ट्रू, लेकिन कोई ऐसा हार्ड कोडेड लॉजिक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है जो कि मेरे कोड को स्टेबल कर सके। ये अनस्टेबल कोडिंग है, ये अनस्टेबल लॉजिक है। दिस इज द demerit of while loop. So for this reason only, we don't use while loop too much. We tend to avoid unless and until something is very easy or we know what is going to happen. In those kind of situations, we use while loop. Otherwise, we will not. Now the question is, there is another difference between while loop and do while loop. ये एक बहुत ही important interview question है. Please understand this. Interview में पूछे what is the difference between while and do while loop. मैंने आपको while loop का बताया, ठीक है? So now let me make another class and I'll tell you do while loop. Okay, I'm ending the meeting for all. I'm logging in again. Okay, guys, welcome back. Okay, now, so let's understand the difference between do while loop and do while loop. So what I'll do is I'll explain in MS Paint first कि actually होता क्या है between while loop and do while loop. So while loop का क्या है? While, this is while, here you will write the condition, ठीक है? So यहाँ पर आपने body बनाया, ओके? नाउ बॉडी आपने जो भी बनाया, ये अंदर बॉडी है आपका, ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा टोटली ऑन दी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ये कंडीशन सही है तो होगा, नहीं तो कुछ ही दे नहीं देगा, आउटपुट ही नहीं देगा। डू वाइल का क्या मतलब है? डू क्या करता है? डू फिर ये अपनी बॉडी बनाता है, ठीक है? डू इसका बॉडी होता है और यहां पर वाइल का कंडीशन होता है। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, यहाँ पे JVM पहले ये कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, इस एग्जीक्यूशन के बेसिस पे, ये कंडीशन के लॉजिक के बेसिस पे ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। डू में ऐसा नहीं है, डू क्या करेगा? पहले बॉडी के अंदर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वाइल में आएगा। वाइल का अगर कंडीशन फॉल्स है तो खत्म, निकल जाएगा। वाइल का अगर कंडीशन सही है तो दोबारा बॉडी के अंदर आएगा। तो वाइल के कंडीशन के ऊपर पहला एग्जीक्यूशन डिपेंड नहीं करता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। ये प्लीज़ आप ध्यान से एक बार हम कोड करके देख लेते हैं, ठीक है? मैं अभी यहाँ पर एक डू वाला कुछ छोटा सा एक कोडिंग करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इंट आई इक्वल्स टू 1, ठीक है? अभी मैं क्या करूँगा, मैं डू बना देता हूँ, ठीक है? डू का मैंने बॉडी बनाया, ठीक है? बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट कर दिया आई को, ठीक है? मैंने बॉडी के अंदर प्रिंट कर दिया आई को, फिर मैंने बोला कि ठीक है भाई तू मेरे को ये कर दे, एक बार वो आइटरेट कर दे, ठीक है? फिर मैं वाइल का कंडीशन दूंगा, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10 या जो भी। और मैं यहाँ पे इसको वो कर देता हूँ। अभी मैं इसको रन करता हूँ, दोबारा रन करते हैं। देखिए ये रन हो रहा है, ठीक है? नाउ फॉर एग्जांपल ये आई इज
ग्रेटर देन 10, यहाँ पे कंडीशन हमने झूठ दे दी, यहाँ पे कंडीशन झूठ दे दिया, राइट। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 1 प्रिंट हुआ ना, कंडीशन, क्योंकि पहले ये प्रिंट होगा ही होगा, ये होगा ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर ये कंडीशन सही है तो दोबारा जाके लॉजिक चेक करेगा, नहीं तो कम से कम ये होगा। अगर यही चीज़ मैं वाइल लूप में करूँ तो ये काम नहीं करेगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। मैं और एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इनिशियलाइजेशन हटा देता हूँ, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हटा दिया, ये हटा दिया, मैं यहाँ पे देखता हूँ इनफाइनाइट चेक, ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ अपना फेवरेट ट्रू, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, इनफाइनाइट चेक होता जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट चेक होता जाएगा। मान लो मैं अगर यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूं, ठीक है, एक बार होगा ही होगा। इसकी वजह से अगर इफ दिस कंडीशन is true, then the logic will go inside the do body, else it will not. Okay, but no matter the logic, no matter the condition in while, this do body will get executed once, no matter what. ये एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये ट्रू हुआ तो वापस आएगा, नहीं है फॉल्स है तो एक बार में फिर यहाँ आएगा, नीचे निकल के खत्म। तो ये होता है वाइल और डू वाइल का कॉन्सेप्ट। आज पे मैं यहाँ पर ही वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हमारा जो क्लास मिस हुआ था, ओके, सो लेट